تمام دوست جو ہیں وہ تھوڑا آگے کے تشریف لیں. اور جن خواتین کو پیچھے آ کے بیٹھنا ہے جگہ ہے پیچھے آ کے بیٹھ سکتے ہیں. پتہ نہیں باتوں میں رکھی تھی آپ نے کسی حساب بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بآواز بلند صلوات. بر خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بر حبیب خدا ختم انبیاء آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الکریم انا نحن نزلنا الذکر انا لہو لحافظون. ایک اور صلوات پڑھ دیں. اپنی گفتگو کا آغاز دعائے امام زمانہ سے کرتے ہیں. آپ سب مل کے پڑھیے گا. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ زکاتہ وتمتعہ فیہا طویلا. مومن و مومنات، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو یہاں پر مدعو کر کے ذکر امام حسین کے لیے مجھے بھی اور اپنے آپ کو بھی توفیق بخشی. پروردگار اعلیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور سچے اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل فرمائے. مجلس مقدمہ نہیں ہے، مجلس نتیجہ ہے. مجلس ابتدا نہیں ہے، مجلس انتہا کا نام ہے. مجلس عبادتوں کا نتیجہ ہے، مجلس جنت کا نشان ہے. یہاں سے پرواز ہوتی ہے رضایت پروردگار عالم. ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ عمدہ طریقے سے پیش کریں، کیونکہ درگاہ عزتی میں قبول ہونے والی اس عبادت کو انتہا عبادت کہتے ہیں، نتیجہ عبادت کہتے ہیں، معرفت کی عظیم ترین منزل کہتے ہیں آپ اسے.
اسی لیے ہم اس کے اندر جمع ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. میں نے جس آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا وہ آیت سورہ ہجر کی آیت ہے. آپ سب جانتے ہیں سورہ ہجر قرآن کا 15واں سورہ ہے, اس کی 9 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم کہہ رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّکْرَ, ہم نے ذکر کو نازل کیا. ہم ہیں, ہم نے ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس ذکر کے محافظ بھی. یعنی نزول بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور حفاظت بھی اللہ ہی کی طرف سے. واضح ہے بات, ایک صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ذکر کا نازل کرنے والا اور میں ہی ذکر کا محافظ ہوں, حفاظت کرنے والا. اب اگر اس آیت کے اوپر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو احساس ہوگا, خیال ہوگا, تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی بات کہ مفسرین نے لکھا کہ ذکر سے مراد قرآن کریم, پروردگار عالم کا کلام, قرآن حکیم. اب یقیناً سوال کی گنجائش ہے کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّکْرَ, ہم نے یہ ذکر نازل کیا. پروردگار کس سے کہہ رہا ہے؟ یہاں 2 خیال ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ نامسلموں سے کہہ رہا ہے جو مسلمان ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں اس کا محافظ کرنے والا, حفاظت کرنے والا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یقیناً جو اللہ ہی کو نہ مانے, جو قرآن ہی کو نہ مانے, جو رسول ہی کو نہ مانے, وہ اللہ کے اس کلام کو کیا مانے گا؟ اس نے تو خدا ہی کے اوپر اپنا عقیدہ نہیں رکھا. تو یقیناً اللہ غیر مسلم سے تو نہیں کہہ رہا. پھر اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ مسلم سے کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّکْرَ, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ کار. لیکن سوال کی گنجائش پھر بھی ہے کہ اللہ مسلم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ مسلمان کا تو عقیدہ ہی یہی ہے. مسلمان کا تو عقیدہ یہی کہ قرآن صحیح و سالم ہے, قرآن نازل کردہ ہے, پروردگار ہے, قرآن کلام رسول ہے, قرآن معجزہ الہی ہے. تو اس کے اندر کیسے کوئی خامی, کوئی خرابی یا شبہ یا اشکال یا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ تو سوال ہے کہ اللہ مسلمان سے کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا, مسلمان سے کیوں کہہ رہا ہے؟ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. توجہ رکھیے گا, ذکر سے مراد قرآن ہے. تو پروردگار اگر ذکر سے مراد قرآن ہے اور تو نے قرآن کو نازل کیا ہے اور تو اس کا محافظ بننا چاہ رہا ہے اور تو ہی بیان کر رہا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے ذکر کو اور میں ہی اس کا محافظ ہوں, پروردگار مسلمان سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تمام مفسرین لکھ رہے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے, ذکر سے مراد قرآن ہے. آئیے تھوڑا سا میں آپ سے یہ سوال کر لوں, اس قرآن کا اسٹیٹس کیا ہے, اس قرآن کی وجہ کیا ہے, اس قرآن کی اپنا معیار کیا ہے؟ تو آپ سب مل کے یہی جواب دیں گے, قرآن جو کچھ بھی ہے کلام قول رسول ہے. کلام قول رسول یعنی قول محمد کو قرآن کہتے ہیں, یعنی رسول کی زبان سے جو جاری ہوا اس کو آپ قرآن کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے, جہاں محمد نے بتا دیا کہ یہ قرآن ہے, آپ نے اس کو قرآن مانا. صلوات پڑھیے محمد. رسول نے کہا یہ میرا کلام قرآن ہے, آپ نے اسے قرآن کی جلد میں سما دیا اور اس کو آپ نے اس کا نام جو ہے قرآن رکھ دیا, اس کو جو ہے جلد کے طور پہ سامنے مسلمانوں کے رکھ دیا. توجہ ہے نا آپ کی. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ قول رسول ہے, رسول کی زبان پہ جاری ہوا اور اس کی سند بھی خود رسول نے ہی دی اور رسول نے ہی کہا کہ یہ کلام خدا ہے, اس لیے آپ نے اسے قرآن مان لیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک نارمل انسان اگر قرآن پڑھنا چاہے, قرآن کی تلاوت کرنا چاہے, قرآت کرنا چاہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ ایک قرآن پڑھنے میں ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, کتنی دیر لگ جاتی ہے آپ کو ایک قرآن اول سے لے کے انتہا تک ختم کرنے میں؟ بول دیجئے, کوئی بات نہیں, ہمارا اپنی مجلس ہے, آپ ایسے نہ دیکھیے رہا, آپ صلوات پڑھیے. آپ ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں 1 سال. مجھے اپنا سمجھ
समझ के मजलिस पढ़िए, हैं मजलिस सुनिए, मजलिस अपनी आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, तो जो है ना वो कहते हैं कि परवरदिगार का शुक्र है कि परवरदिगार ने हमें ऐसा मोहम्मद दिया, मोहम्मद का शुक्रिया कि हमें ऐसा मौला दिया, मौला तेरा शुक्र कि हमें मवद्दत का दर्ज दिया, मवद्दत से हमने इस मजलिस को मुनव्वर किया, इस मजलिस में मोमिनात भी आए, इस मजलिस में ये मोमिन भी आए हैं, और इन दोनों मोमिन और मोमिनात की खिदमत में ऐसा मौलवी भी आए। अब मिलके सलावत तवज्जो हुई ना? तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहेंगे, कितने घंटे लग जाते हैं आप? नॉर्मल एक स्पीड से पढ़ने वाले, वो नहीं जो खत्म कर रहे हैं कुरान, नहीं हम कहते हैं खत्म ना करो, हजम करो कुरान। लेकिन एक नॉर्मल स्पीड से पढ़ने में आप देखेंगे आप कहिए एक सिपारा मैक्सिमम 1 आवर लेता है स्पीड, आहिस्ता आहिस्ता रखिए, तो 1 आवर यानी 30 आवर्स चाहिए। तो इसका मतलब है रसूल ने जो कुरान टॉक किया होगा, जो बोला होगा, जो कौल के तौर पे पेश किया होगा, वो कितने घंटे का है कलाम? बोलिए 30 आवर्स। ऑफ कोर्स ये हमारे भाई बोल सके, आप भी बोलिए थे ना। तो 30 आवर्स, तवज्जो रखिए, आप साहिब इल्म है, आप साहिब फजीलत है, साहिब मार्फत है, जिंदगी भर आपने मजालिस सुनी है, जिंदगी भर। अब मेयार पे परखिएगा, बात मेरी मेयार पे है या नहीं। अगर मेयार पे हो तो कबूल कीजिएगा, वरना यहीं पे वापस कर दीजिएगा। अमेरिका में तो रिटर्न पॉलिसी चला करती है, रिटर्न पॉलिसी पसंद ना आए तो वापस 90 डेज और 40 डेज को छोड़िए, जब तक मैं जिंदा हूं जब तक आप वापस कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि कुरान 30 आवर्स की टॉकिंग है। रसूल ने अगर कुरान पढ़ के बताया है, जिसको आपने कुरान समझ के लिखा है, वो कितनी आवर की टॉकिंग है? 30 आवर्स की। मुझे बताइए रसूल कितने आवर इस दुनिया में जिंदा रहे, यानी हयात ज़ाहिरी कितनी है? तो आप कहेंगे 63 ईयर्स। अगर आप घंटे निकालेंगे तो कितने बन जाएंगे? कहते हैं 5.5 लाख घंटे बन जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं पहले से करके आया हूं आपकी जहमत कम करने के लिए। तो कितने घंटे बन गए रसूल की जिंदगी के? 5.5 लाख घंटे। और 5.5 लाख घंटे में 30 घंटे की क्या हैसियत होगी? तवज्जो है, 30 आवर्स की क्या हैसियत होगी? अल्लाह कह रहा है कि मैं 30 आवर्स की टॉकिंग, रसूल का 30 घंटे का बोलने का मैं जिम्मेदार हूं। इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्र, रसूल ने जो 30 घंटे बोला उसका तो मैं जिम्मेदार हूं, उसकी मुहाफ़ज़त तो मैं करूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार पास ये बता कि 30 घंटे के बाद जो रसूल ने किया, रसूल ने जो बोला, उस अमल की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तू सिर्फ रसूल के 30 घंटे का मुहाफ़िज़ है? इसको 30 को निकाल के बाकी किसी चीज का मुहाफ़िज़ नहीं है। सलावत पढ़िएगा। 30 आवर्स का अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना, हम 30 आवर्स के तो जामिन है, मुहाफ़िज़ है, प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी आवर्स के नहीं। 5.5 लाख घंटे जो शख्स दुनिया में जिंदगी गुजारता रहा, तो अल्लाह उसका जामिन है कि नहीं है? सही है। किरदार रसूल, अफकार रसूल, कौल रसूल, फिक्र रसूल का जामिन है कि नहीं? तो अल्लाह कहेगा कि तुम मुसलमान हो, तुम मेरे कलाम को नहीं समझते। मैंने तो ये कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्र, मैंने ये थोड़ी कहा कि हमने कुरान को नाजिल किया, हम कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह ने कहा मैंने जिक्र नाजिल किया है, मैं जिक्र का जामिन हूं। जिक्र किसको कहते हैं? मुजस्समे रसूल को जिक्र कहते हैं। फेले रसूल भी, कौल रसूल भी, अमल रसूल भी क्या होगा? जिक्र कहलाएगा। रसूल का वजूद जिक्र है, रसूल का पैकर वजूद, पूरा का पूरा सरापा वजूद रसूल का जिक्र है। तो अल्लाह कह रहा है हम जिक्र को बचाने वाले हैं, हम कौल को बचाने वाले नहीं है, क्योंकि अगर जिक्र को बचा लेंगे तो कौल आप बच जाएगा। तवज्जो है ना? अगर रसूल का हर अमल बचा लेंगे, रसूल की हर फिक्र को बचा लेंगे, रसूल का हर एक्ट को बचा लेंगे, रसूल के हर अमल को बचा लेंगे, तो कौल खुद बच जाएगा। अब आपके मेयार पे लाता हूं गुफ्तगू, आप मुझे बताइए अगर किसी का किरदार हुज्जत ना रखता हो, उसका कौल हुज्जत रखता होगा? नहीं। मैं आपकी खिदमत में आप बात कहता हूँ, मेयार की बात है। मैं कहूँ एक आदमी है, रात दिन चोरियां करता है, रात दिन उसका काम चोरियां डकैतियां मारना। माफ कीजिएगा जनाब, गैर मियारी है गुफ्तगू, आप शायद उसे तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन कभी क्या है नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है।
लिफ्ट भी जो है वो नीचे से ऊपर जाया करती है कभी कभी। आप मुझे बताइए, जो शख्स हरकत में किरदार में 2 नंबर हो, उसके कौल को मानेंगे आप? कभी नहीं मानेंगे ना। इसका मतलब आपके नजदीक हुज्जत पहले किरदार होता है, बाद में कौल हुआ करता है। किरदार को हुज्जत मानेंगे जभी तो इसकी सेइंग, इसके बोलने को हुज्जत मानेंगे। आप कहेंगे इसका किरदार सही है, तो अब क्योंकि किरदार सही है, जो बोलेगा वो भी सही होगा। अगर किरदार सही ना होगा तो जो बोलेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब परवरदिगार कह रहा है मैं जिक्र को बचाने वाला हूं, यानी मोहम्मद के किरदार को, मोहम्मद के अमल को बचाने वाला हूं। अगर अमल बचा लिया तो कौल खुद बच जाएगा। तो इस जिक्र से मुराद कौल रसूल ना लीजिएगा, बल्कि अमल रसूल मुराद लीजिएगा। तो कौल रसूल कहां मिल रहा है? कुरान की सूरत में। और अमल रसूल कहां मिलेगा? जब कौल रसूल को अल्लाह कयामत तक के लिए मुहाफ़िज़त करेगा, कयामत तक के लिए बचा के रखेगा, कयामत तक के लिए मोइज़ा बना के रखेगा कौल रसूल को कुरान की सूरत में, तो अमल रसूल को भी कयामत तक के लिए बचा के रखेगा। तो याद है कि कौल रसूल को कुरान कहते हैं और अमल रसूल को अहले बैत कुरान कहते हैं। तो कौल रसूल को आप कुरान कहते हैं, अमल रसूल को अहले बैत, कुरान अहले बैत कहते हैं। सही है ना? इसीलिए तो रसूल ने कहा तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम एक का जिक्र क्यों करते हो, 2 का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? तो रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कौल रसूल होगा और एक अमल रसूल होगा। तो जो मंजिलत कौल रसूल की होगी वही मंजिलत अमल रसूल की होगी। आओ इसको भी कुरान से साबित कर दो। कुरान ने तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्र, हमने जिक्र को नाजिल किया। अगर जिक्र से मुराद कुरान ले लेते हो, कौल रसूल ले लेते हो, तो कुरान ने फिर कहा कि अमल के भी जिम्मेदार हम हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि ऐ सोचने वालों, ऐ समझने वालों, ऐ मार्फत रखने वालों, कभी कुरान पूरा पढ़ा करो। कुरान पूरा पढ़ने के बाद समझा करो। नतीजा पूरा पढ़ने के बाद हुआ करता है, नाकिस पढ़ने के बाद नहीं हुआ करता। इसलिए परवरदिगार आलम कहता है कुरान पूरा पढ़ो। देखो अमल रसूल की सनद मिलती है कि नहीं? वहां भी परवरदिगार कहता है अमल रसूल की हम सनद दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। उम्मत रसूल कौल रसूल को संभाले बैठी हुई है, इसमें कोई मुजायका नहीं। मौजज़ा है कुरान, कौल रसूल है, लेकिन 30 आवर्स का। आप सब ने इत्तेफाक किया, आप पीछे नहीं हट सकते। ये एक मौलवी का तरीका कार होता है, पहले को बुलवाना, उसके बाद दिल में उतार देना। तो 30 आवर्स को आपने कुरान की सूरत में रखा हुआ है, 30 आवर्स की टॉकिंग को, लेकिन बाकी अमल रसूल है। अमल रसूल कहां मिलेगा? परवरदिगार कह रहा है जो हमने मेयार कुरान के लिए रखा है वही मेयार हमने अमल रसूल के लिए रखा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, यहां इन्ना कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, लेकिन इन्ना से बढ़ के होता है इन्नमा। आप यकीनन जानते हैं, आगा साहब तशरीफ रखते, इन्ना से बढ़ के होता है इन्नमा। यानी जहां अमल रसूल की बात आई वहां इन्ना कह के नहीं, इन्नमा कह के कहा। इन्नमा के हम जो है वो क्या करते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, हमने अमल रसूल को तो इतना महफूज बनाया है कि उस अमल रसूल के अंदर परवरदिगार कह रहा है कि मैं गवाही दे रहा हूं कि मैंने निजासतों को दूर रखा है और तहारतों को बेहतर बना के इनके सामने रखा है। तो जहां कौल रसूल तक, न कौल रसूल तक निजासत पहुंच सकती है, न अमल रसूल तक निजासत पहुंच सकती है। तो अब मेरे सवाल का जवाब दे, जब कौल रसूल निजासतों से दूर है, मौजज़ा बाकी है कयामत तक का, तो आइए अमल रसूल को तलाश कीजिए कि वो कहां मिलेगा। तो आप सब कहेंगे अमल रसूल खुद मोहम्मद की सूरत में मौजूद है, और मोहम्मद कह गए अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। अब ये याद है कि कौल मोहम्मद कुरान की सूरत में मौजूद है, तो अमल मोहम्मद खुद इंसान पैकर की सूरत में कयामत तक बाकी रहेगा। सलावत पढ़ दीजिए। तो अमल रसूल मोहम्मद की सूरत में बाकी रहेगा। जमाने का मोहम्मद तलाश कर लीजिए, जमाने का मोहम्मद तलाश कर लीजिए, आपको अमल मोहम्मद सामने नजर आ जाएगा।
भाई देखिए ना, आप देखिए रसूल सनद दे के चलेगा। अब जमाने में मोहम्मद मौजूद, सही। अब यकीनन क्योंकि आप ये सब जानते हैं कि जब रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो नबूवत भी साथ लाए, रिसालत भी साथ लाए और इमामत भी साथ लाए। ये तीन थे ना ओहदे। अब कोई रसूल आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रसूल रिसालत को अपने साथ ले गए। अब कोई नबी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नबूवत को अपने साथ ले गए। लेकिन एक मंजिला छोड़ गए, वो कौन सी थी? इमामत की। अब देखिए, ये मेरी बात नहीं है कि मौलवी कह रहा है इसलिए आप मान ले, नहीं। जाकिरों की बात को ना मानिए, जिक्र की बात को मानिए, सही है ना। कुरान की बात को मानिए। देखिए कुरान खुद कह रहा है कि हम, यानी जिसे परवरदिगार आलम इतना मुस्तनद तौर पे पेश करा, यानी नबूवत का भी इंट्रोडक्शन पेश किया है। तवज्जो दीजिएगा, नबूवत का भी इंट्रोडक्शन और रिसालत का भी इंट्रोडक्शन ऐसा पेश नहीं किया जैसा इमामत का पेश किया। कहा ना कि इन्नी अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती व रजी तो लकुम इस्लाम दीना। अब आप सब जानते हैं ये आयत नाजिल हुई, रसूल ने किसका हाथ बुलंद करके दिखाया? कहा कि देखो अली का हाथ को बुलंद किया, बुलंद करके दिखाया कि जो आयतें आई हैं दीन के कामिल होने की और नेमतों के मुकम्मल होने की, वो इस जात की सूरत में आई है। इसके बाद रसूल ने कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, यानी खुद रिसालत का ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं मिलता, ऐसा नबूवतों का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता जैसा इमामत का मिला करता है। यानी रसूल ये बता के जा रहे हैं कि देखो इमामत मेरे बाद चलेगी, ना नबूवत चलेगी ना रिसालत चलेगी। नबूवत और रिसालतों को मैं ले जा रहा हूं और छोड़ के जा रहा हूं तो सिर्फ इमामत को छोड़ के। परवरदिगार आलम ने कहा कि रसूल इंट्रोडक्शन पेश करो। किसका? मौला का। लफ्ज मौला आप देखिए, यानी परवरदिगार ने कहा कि ऐसा जुमला बोलो, ऐसा लफ्ज है मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। कहा ना। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं कि साहब ये मौला के माना मीनिंग्स में इख्तिलाफ है। इस वाक़े से तो किसी ने इनकार नहीं किया, तमाम मुस्तनद किताबों में सबने मकातिब फिक्र ने माना है कि ये है। अब सवाल ये तो कहते हैं मौला के मानों में फर्क है। भाई माना के अंदर फर्क है ना। भाई मौला के बहुत सारे माना है, वो कहते हैं 30, 35, 40, 50, 60, 70 जितने माना है वो सब मौला ही के हैं। समझा करें भाई कुछ आप, जितने माना है सब मौला के ही है, क्योंकि लगाए बैठे हैं कि किसी तरह मशीन को मंजिल को, यानी जिसे कहते हैं सवारी को मंजिल तक ना पहुंचने दो। मैं कहता हूं हटाइए जनाब, इख्तिलाफ को हटाइए, इत्तेहाद की बात कीजिए आप। भाई रसूल ने कहा कि माना करो बैठो, भाई माना क्यों कर रहे हैं आप? रसूल ने कहा कि मीनिंग करके समझना। आप मीनिंग करके ना समझिए, मौला को मौला ही रहने दीजिए, सही है। भाई मीनिंग में इख्तिलाफ है, लफ्ज मौला में तो इख्तिलाफ नहीं है। सवाल है कि नहीं? भाई लफ्ज के मौला के अंदर इख्तिलाफ है, खुद लफ्ज में इख्तिलाफ नहीं है। तो रसूल ने कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, तो रसूल जब मौला कह रहा है तो तुम भी मौला कह दो। रसूल ने जिसको मौला कहा तुम भी उसको मौला कहो। इसका मतलब अगर तुमने लफ्ज के माना किए तो इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, लेकिन लफ्ज को ऐन बहू कहा तो फिर इख्तिलाफ नहीं हुआ, फिर इत्तेहाद होगा। तो मान लो अली की जात वो है जहां सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद हुआ करता है, इख्तिलाफ नहीं हुआ करता। सलावत शायर भी कहते हैं तुम जिसे मिल गए हो मौला, मिलना अब किससे बाकी रहा? आना रहा कहाँ, जाना रहा कहाँ, पाना भी क्या बाकी रहा है? अल्लाह ने कहा कि मैं कौले रसूल को भी बचाऊंगा, अमल रसूल को भी बचाऊंगा। तो इसका मतलब हमें दोनों चीजें चाहिए, कौले रसूल भी चाहिए और अमल रसूल भी चाहिए। यानी हमें कुरान करीम भी चाहिए और अमल रसूल यानी मोहम्मद बेउनवान वजूद पैकर इंसानी भी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैं मोहम्मद को भी क़यामत तक बाकी रखूंगा और कौल मोहम्मद को भी क़यामत तक बाकी रखूंगा। सही। अब आइए आप ये कहिए कि इमामत आपके सामने है मौजूद, सही। इमामत बेउनवान करबला आती है। आप करबला की इस मार्के को, करबला की इस फजीलत को समझिएगा। मैं हमेशा अपने तकारीर में ये कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से जो भी मंसूब होता है, निस्बत लेके आता है, मनसब लेके आता है, वो एक मोइज़ा भी साथ लाता है। बिल्कुल, जब भी तो साबित करता है अपने आप को।
یعنی جو بھی رسول آئے گا وہ اپنے ساتھ معجزہ بھی لائے گا، کیونکہ اللہ کا منصوب ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر امامت بھی اللہ کی منصوب ہے تو امامت کے پاس بھی معجزہ ہوگا. صحیح ہے نا؟ مجھے بتائیے قرآن معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن جیسا کلام آپ بنا نہیں سکتے، اس لیے معجزہ ہے. انسان کا وجود عاجز ہے کہ وہ ایسا کلام بنا کر لائے. صحیح، اس لیے آپ نے اسے معجزہ مانا، اور جو وہ لے کے آیا اس کو آپ نے رسول مانا. صحیح. اب آپ بتائیے امامت اگر اللہ کی طرف سے منسوب من اللہ ہے تو اس کے پاس بھی معجزہ ہوگا. تو امامت کے معجزے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کربلا. کربلا. نہ آپ قرآن لا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کربلا دوسری لا سکتے ہیں. مجھے بتائیے دنیا میں کوئی قرآن کا جواب نہ دے سکا اور دنیا میں کوئی کربلا کا جواب نہیں دے سکا. ایسی شہادتیں، ایسے مصائب کہیں ہیں دنیا کے، ایسے واقعات پڑھتے جائیے. اگر ایک آنسو بھی، ایک قطرہ بھی آپ کی آنکھ سے نمودار ہو جائے تو بتائیے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ امامت کے معجزے کو کربلا کہتے ہیں اور رسالت کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ آئیے ذکر کرتے جائیے، فکر کرتے جائیے، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن کا جو اسٹیٹس ہے وہی ان کا اسٹیٹس ہے. دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے. صحیح. قرآن پہ غور و فکر سعادت ہے اور قرآن پہ عمل کرنا نجات ہے. یہی ہے نا؟ آئیے بالکل اسے اہل بیت کے اوپر اپلائی کیجیے. میں آپ سب سے کہوں گا کہ ذکر حسین ثواب ہے اور فکر حسین سعادت ہے اور کردار حسین نجات ہے. واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے کہ وہی جو اسٹیٹس آپ کے پاس قرآن کا ہوگا وہی اسٹیٹس آپ کے اہل بیت کا ہوگا. یاد رکھیے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے ہیں. بس آپ یہ نہ کہیے کہ کون قرآن ناطق ہے، کون قرآن صامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو کہو قرآن صامت اور ان کو کہو قرآن ناطق کہو. یہ تقسیم بندی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ جو ان میں سے بولے گا وہ قرآن ناطق بن جائے گا، جو ان میں سے خاموش رہے گا وہ قرآن صامت بن جائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد. اب آپ فضیلت سمجھیے. اچھا اب آپ کے رسول کہتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صحیح ہے. اگر تھوڑا سا آپ اس پہ غور کیجئے گا یہی فضیلت کا ہی بات موجود ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. یہ کہا نا رسول نے کہا. یہ اتھینٹک ہے بالکل اپنی جگہ. اب آپ اس کے ذرا سے معنی کیجئے. ان الحسین، خود حسین، ذات حسین، خود شخص بے ماہوا شخص حسین کیا ہے؟ مصباح الہدی. یعنی خود ذات حسین کیا ہوگا؟ مصباح الہدی. یعنی یہ چراغ ہے کس کی؟ ہدایت کا. ہدایت کا چراغ ہے. اور کیا ہے؟ دیکھیے دوسری صفت بھی ہے سفینۃ النجات. سفینہ ہے کس چیز کا؟ نجات کا سفینہ. اب آپ غور کیجئے گا خود حسین، خود ذات حسین نجات ہے. کس کی؟ کشتی نجات ہے ذات حسین. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کشتی نجات ہے تو اس کشتی نجات کا کوئی ناخدا اور ہوگا. حسین خود ناخدا نہیں ہے، حسین خود کشتی ہے. یعنی کشتی اور ہوتی ہے، کشتی کا ناخدا اور ہوتا ہے. دو چیز تصور کیجئے گا، ایک کشتی تصور کیجئے، ایک کشتی کا ناخدا تصور کیجئے. تو حسین کی کیا ہے معیار؟ حسین کی کوالٹی کیا ہے؟ حسین کی منزلت کیا ہے؟ کہ حسین خود کشتی نجات ہے. حسین خود کشتی نجات ہے. تو اس کشتی نجات کا ناخدا کون ہوگا؟ خود خدا ہوگا. خود خدا ہوگا. تصور کیجئے گا حسین خود کشتی نجات ہے. جب یہ حسین خود ذاتاً کشتی نجات ہے تو کشتی نجات کا ناخدا خود خدا ہوگا. جبھی تو یہ کشتی نجات ہے. یعنی اگر پروردگار عالم فضیلت کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کردار حسین کو اگر اپنا لیا، افکار حسین کو اپنا لیا، قول حسین کو اپنا لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کشتی نجات میں سوار ہو گئے. اور اگر جو کشتی نجات میں سوار ہوگا یہ کشتی یقیناً منزل تک پہنچے گی. کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ اس کا ناخدا خود خدا ہے اور جس کشتی کا ناخدا خدا ہوا کرتا ہے وہ منزل سے کبھی نہیں بھٹکتی. صلوات پڑھیے گا. توجہ ہو گئی آپ؟ تو ہم کیا ہے؟ کشتی نجات میں سوار ہے. یہ کشتی یقیناً اپنی منزل تک پہنچے گی. اس کا ناخدا خود خدا ہے. تو آپ اگر
जरा सा थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। परवरदिगार आलम बात को कभी नाकिस नहीं कहता, बात को कभी नामुकम्मल नहीं कहता, बात को मुकम्मल कहेगा। कुरान वो है जो इंसान के जहन में सवाल आ जाए, कुरान उसका जवाब दे रहा है। कुरान एक और कश्ती के बारे में भी कहता है। वो कौन सी कश्ती? कश्ती नूह। वो कश्ती नूह जिसके लिए परवरदिगार एक ऐसी मिसाल दे रहा है कि कश्ती नूह चली सिर्फ तूफान से बचा रही थी, निजात नहीं दे रही थी, सिर्फ तूफान से बचा रही थी। उस कश्ती को कश्ती निजात नहीं कहा, दुनियावी निजात थी, उखरवी निजात नहीं थी उसके अंदर। अब आप आइए उस कश्ती के बारे में जरा सा समाप्त फरमाइए कि जिस तरह हजरत नूह का अपना बेटा जब चला है कश्ती के साथ, तो क्या हुआ नतीजा? नतीजा हुआ कि बाप के साथ चल रहा था, बाप ने पुकारा कि आ जाओ मेरी इस कश्ती में सवार हो जाओ। नतीजा क्या? उसने कहा कि आप भी चल रहे हैं। देखिए इसे कहते हैं जसारत। परवरदिगार को जसारत नहीं पसंद बिल्कुल। कश्ती के साथ कह रहा आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूं, आप भी पानी के अंदर है, मैं भी पानी के अंदर हूं, आपकी भी सिमत आगे बढ़ रही है, मेरी भी सिमत आगे बढ़। परवरदिगार आलम को इतना नापसंद आई ये बात, इतनी नापसंद, इतना निफरीन, कहा कि एक मर्तबा नूह तुमने अगर अब इसकी सिफारिश कर दी, ये नाअहल है, अगर इस नाअहल की अब तुमने सिफारिश कर दी तो तुम्हारी नबूवत खतरे में पड़ जाएगी। है कुरान का वाकया है, कौन इनकार करता है? कहा इस नाअहल की अगर अब तुमने सिफारिश कर दी तो तुम्हारी नबूवत खतरे में पड़ जाएगी। मेयार समझा आपने परवरदिगार का? नाअहल की सिफारिश कर दी तो तुम्हारी नबूवत खतरे में पड़ जाएगी। और वहां गदीर में आके देखिए परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि अगर तुमने इनकी अहलियत का ऐलान न किया, इन लम तफल फमा बल्लगता रिसालतो, ऐ मोहम्मद तुम्हारी रिसालत खतरे में पड़ जाएगी। अब आप समाअत फरमाइए, अल्लाह कहता है उस नाअहल की सिफारिश कर दोगे तो तुम्हारी नबूवत खतरे में पड़ जाएगी, और अली की अहलियत का ऐलान न किया तो रसूल तुम्हारी रिसालत खतरे में पड़ जाएगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अल्लाह अहलियत देखा करता है, सलाहियत देखा करता है। अगर अहलियत है तो उसकी नबूवतें और रिसालतें फिदा हो जाए, और अगर कोई नाअहल है तो नबूवत रिसालत भी कुछ ना कर सके। तो यह मार्फत और किरदार की मंजिल है। अगर आपने हासिल कर लिया पैगाम हुसैनी को तो सही। तो याद रखिए ये जो मजालिस हैं, ये मजालिस, ये सब क्या है? ये मकतब है। हम अपने शियत को क्या कहते हैं? मकतब है। क्यों मकतब है? एक होता है मजहब, एक होता है मकतब। फर्क है मजहब में और मकतब में। मजहब हो सकता है सीना बसीना मुंतकिल हो, मजहब हो सकता है सीना बसीना मुंतकिल हो, लेकिन मकतब नहीं। मकतब में पढ़ाने वाला होगा, पढ़ने वाले होंगे, और कुछ पढ़ाने के लिए होगा। अब आप बताइए आपका मजहब ये मकतब कहलाएगा या मजहब कहलाएगा? आपका दीन ये मकतब कहलाएगा या मजहब कहलाएगा? अब आप सब कहेंगे कि ये मकतब कहलाएगा, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाने वाले आते हैं, कुछ पढ़ने वाले आते हैं, और कुछ पढ़ाया जाता है। तो याद रखिए अल्लाह ने आपके दीन को मकतब बना दिया, और कयामत तक के लिए आपके लिए एक उस्ताद मुअय्यन कर दिया। उस उस्ताद को आप मासूम कहते हैं, और फिर आप में औलाद मोहम्मद कहते हैं। इसका मतलब है शियत एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा मकतब है कि जिसमें पढ़ाने वाला होता है, पढ़ने वाले हुआ करते हैं, और उन्हें दर्स नसाब पढ़ाया जाता है। अब तवज्जो रखिए इस जुमले के ऊपर कि अगर आपने ये कह दिया, अब मैं ये जुमला कहने की जसारत कर रहा हूं आपकी खिदमत में, अगर शियत मकतब है तो कोई ये दावा ना करे कि हम पैदा हुए हैं शिया। नहीं, शिया पैदाइशी नहीं हुआ करता, बल्कि शिया इस दुनिया में आता है, आने के बाद सीखा जाता है, और सीखने के बाद समझ में आता है, और समझ में आने के बाद अमल किया जाता है। अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो वो शिया कहलाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो शिया नहीं कहलाता। शिया बाय बॉर्न नहीं हुआ करता, शिया बाय एजुकेशन होता है, बाय प्रैक्टिस हुआ करता है। अगर किसी के पास किरदार हुसैनी मौजूद है, अफकार हुसैनी मौजूद है, तो उसे कहने का हक है कि मैं शिया हूं। जिसके पास अफकार और किरदार हुसैनी और अहले बैत का ना हो तो उसे कोई हक नहीं है कि अपने आप को शिया कहे, क्योंकि उलमा ये कहते हैं कि शिया पैदाइशी नहीं हुआ करता, बल्कि शिया आगाही हुआ करता है। शिया मजहब आबाही नहीं हुआ करता, बल्कि शिया मजहब आगाही हुआ करता है। जिसको जितनी बड़ी आगाही होगी वो उतना बड़ा शिया होगा।
हासिल करने के लिए क्या होता है, एक मकतब बनाया जाता है, एक मरकज बनाया जाता है जिसमें तालीम और तरबियत हुआ करती है। सही, जब तक आप मरकज नहीं बना लेंगे है तो आपके अंदर वो सेटअप नहीं होगा, एक क्या कहते हैं जिसे कहते हैं तरीकाकार नहीं होगा। और इसमें कोशिश आप ही को करनी है क्योंकि आप ही हैं। यकीन मान लीजिए, मैं अफ्रीका, ये नहीं कि मैं कोई फजीलत, मैं रखता ही नहीं कोई फजीलत, एक छोटा सा वाकया मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। मैं अफ्रीका गया, अफ्रीका का एक कंट्री है बोट्सवाना, आगा साहब जानते हैं, हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं। यकीन मानिए उसके अंदर मसलन कोई शिया आलिम नहीं गया था, एक शिया आलिम गया था। क्यों गया था? क्योंकि वहां एक शिया की डेथ हो गई थी। सही, एक शिया आदमी की डेथ हो गई थी, उनके पास कोई महसर ही नहीं था कि वो किस तरह उसको दफनाए ले जाते। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि नहीं हमें मरकज बनाना चाहिए। पहले तो कहते थे बड़ी मामूली सी कम्युनिटी हमारी, उसके बाद जब बनाया तो उन्हें एहसास हुआ कितने शिया मौजूद थे, कितने लोग सिमट के आए। और आशूरे का दिन आता है, उस दिन तो कोई शिया अपने घर में रहता ही नहीं है। तवज्जो किया आपने? तो आप जब मरकज बना लेंगे, यकीन माने हम इंतजार किया करते थे 5 आदमी हो तो नमाज जुम्मा अदा। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, आज जाके देखिए उनकी अपनी वेबसाइट मौजूद है, पंजतनी एसोसिएशन के नाम से, आप जाके देख सकते हैं। आगा साहब ये सब उनके रिश्तेदार भी बैठे हैं इत्तेफाक। मैं असल में सिरसी वालों के साथ कुछ ज्यादा ही रहा हूँ। सलावत पढ़िए। तो लेकिन वो कहते हैं कतरा कतरा सैल गर्दत, फारसी में कहते हैं ना, है तो कतरा कतरा से बनती है बात। मैं आपको एक छोटे सा एक वाकया बताऊं। एक आलिम दीन थे, हयात है, अब तो उनके बेटे हयात है, आगा शाहरुदी। वो ये कहते हैं कि मैं जो है वो इस्फहान जो है वो अशरा मुहर्रम का अशरा पढ़ने गया। तो कहा कि लोगों ने कहा कि भाई अशरा तो आप पढ़ चुके हैं, अब कुछ जिक्र हमारे घर भी आके कर दीजिए, कुछ महफिल कोई मजलिस हमारे घर भी आके पढ़ दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई चलो अच्छी बात है, मेरा तो काम ही जिक्र हुसैन है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो कहने लगे, वो मुझे लेके गए, तो मुझे उन्होंने ट्रेन में बिठाया, ट्रेन में बिठाया, बैठ गया। ट्रेन आगे जाके रुक गई। जब ट्रेन रुक गई तो आगे जाके वो चारपाई होती है ना, जिसे क्या कहते हैं आप, उससे पलंग है, वो लिया। कहा इस पे बैठ जाओ, तो इस पे बैठ जाओ। कहा कि आगे रास्ता थोड़ी है, कोई गाड़ी वाड़ी थोड़ी है हमारे पास। अच्छा चलो इस पे बैठ गए। उस आगे जाके उन्होंने कहा कि वो रास्ता जरा तंग हो गया, हमारे कंधे पे बैठ जाओ। उसके कंधे पे बैठ गए। आगे जाके जाए वो, फिर घर आया, वहां बैठ के मजलिस हुई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, तो रास्ता बड़ा तकलीफ दे था कि पहले ट्रेन, ट्रेन के बाद पलंग, पलंग के बाद कंधे पे बैठे, फिर पहुंचे। तो खैर उन्होंने मजलिस पढ़ी। अब वो बूढ़े ज़ईफ आदमी तो हुआ करते थे, सही। उसके बाद वक्त गुजर गया, उन्होंने लोगों को बताया कि भाई देखो तुम्हें भी थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, अपने पास मरकज बनाओ और जो है मसलन दीन में खर्च करो। और याद रखो दीन वो चीज है जो खर्च करोगे वो बैंक है, जितना खर्च करोगे उतना जरूर अल्लाह वापस करेगा। तुम क्लेम कर सकते हो कि परवरदिगार मैंने तेरे लिए इतना खर्च किया, अब वापस करे, क्योंकि अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया तो उस पर लाजिम आएगा कि वो आपको रीपे करे। सही है ना? आप मसलन जितना मसलन किसी को लोन दोगे उतना ही वापस मिलेगा आपको, ये तो आप मानते। वो ये कह के चले गए। आप कहते हैं कि मैं दूसरे साल फिर वो अशरा पढ़ने गया। जब अशरा पढ़ने गया तो मैंने देखा कि वही साहब वही लोग फिर दोबारा आए। कहना मौलाना चलिए हमारे घर चल के जो है मजलिस पढ़ी। उन्होंने माफी मांग लिया। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूँ भाई, यार हड्डी पसलियां मेरी सारी टूट गई थी, मैं तुम्हारे कहना नहीं मौलाना ये कैसे हो सकता है, जिक्र हुसैन के लिए तो बड़ी बड़े मसाइब झेलने पड़ते, वो तो इमाम हुसैन की सीरत उठा के देखिए। अब यकीनन कोई सामने वाला मौलवी को गैरत दिला दे तो मौलवी अब उसका क्या जवाब है? वो कहते ना बच्चे हमारे हद के चालाक हो गए, दरिया का रुख बदलते ही सब तैराक हो गए। तो आजकल तो मोमिनीन ही तो ऐसी मजालिस पढ़ने लगे तो मौलवी ना पढ़ सके। सलावत पढ़िए आप। उन्होंने मौलाना साहब को कहा कि साहब आप मसाइब की हो तो मसाइब की मेराज का तुम नाम ही करबला है, आप तो जिक्र करबला करते हो, आप कैसे? तो कहने लगे फिर मैंने हामी भर ली, मैं चला जनाब। वो ट्रेन हुई। अब मेरे जहन में था ट्रेन होगी, ट्रेन रुकेगी, रुकने के बाद वही पलंग होगा, पलंग के बाद वही जो सब सर पे लादना होगा, लाद के चलना होगा, हड्डियां टूटेगी। पिछली दफा बच के चला गया, इस बार बच के नहीं आऊंगा वापस। अब वो ये कहते बिल्कुल अथॉन्टिक वाकया बता रहा हूं। वो कहते जब ट्रेन रुकी तो मैंने देखा वहां पर एक टूटी फूटी गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में बैठा, मैंने देखा रास्ता भी खुला हुआ था। वो रास्ते में आराम से लेकर ले जाने का बाकायदा उन्होंने बिठाया, बिठाने के बाद मजलिस। तो कहना बमुश्किल तो मैंने मजलिस पढ़ी, वो रोजा पढ़ा, खत्म किया। उसके बाद मैंने सबको झंझोड़ के बताया ये हुआ क्या, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल सफा हो गया। तो उन्होंने उनमें से एक आदमी उठा, सोचिया, कहने लगा कि मौलाना जिस जमीन से, जिस देहात से, जिस से गुजरे थे आप,
وہ میری زراعت تھی، وہ میری زمین تھی. میں نے آپ کی مجلس سن کے یہ تصور کیا کہ اگر میں دنیا سے جاؤں گا تو یہ پورا اپنا کھیت کا کھیت اپنی اولاد کو دے کے جاؤں گا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اولاد کو دے کے جاؤں گا تو میرے بعد کیا کریں گے اس کا. یقیناً یا کمائیں گے، کھائیں گے یا اڑائیں گے. تو میں نے آپ کی مجلس سے یہ درس لیا، اگر یہ کھیت میں اللہ کو دے دوں تو یقیناً آخرت میں اللہ مجھے روضۃ الجنہ دے گا، جنت کا باغ دے گا. تو میں نے اس اپنے کھیت میں سے وہ جھاڑے جو تھی وہ کاٹ دی، اس کے بعد راستہ بنا لیا اور تھوڑی سی زمین بیچ کے سواری کا انتظام کر لیا. اب میں نے آپ کے لیے روزہ منعقد کیا، یعنی مجلس رکھی اس لیے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اب آپ نے جو آ کے دیکھا یہ آپ کی مجلس کا اثر تھا. صلوات پڑھیے محمد. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے سے ہوتی ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، پروردگار کہے گا بس ایک قدم آگے بڑھانا، انتہا تک پہنچانا میرا کام تھا. اب بالکل آسان سی مثال دے دوں آپ کی خدمت میں. آپ سب جانتے ہیں امام حسین جب چلے ہیں نا کربلا سے، ابھی مسائل کی منزل نہیں ہے، امام حسین کربلا سے چلے کتنے لے کے چلے. اب آپ کہیے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے 72 تھے. 72 شہید، جو مشہور روایت ہے 72 شہید، اور آج دنیا میں انہی کا نام باقی ہے. کیا اس صحرا کے اندر کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ یہ جو 72 شہید ہوں گے قیامت تک ان کا ذکر باقی رہے گا؟ کہاں آپ شارلٹ اور کہاں آپ جو ہے کیرولائنا میں بیٹھے ذکر امام حسین کر رہے ہیں. آپ بتائیے اس کربلا کا اس زمانے میں آپ کا آنا، اس کی بات دلیل ہے کہ اس ذکر نے آپ کو کربلا تک اور کربلا کو آپ تک پہنچا دیا ہے. آج آپ کہہ سکتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اس مجلس میں آ کے آپ نے ثابت کر دیا اے امام حسین اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو یقیناً اسی مقام پہ فائز ہو جاتا جس پہ آپ کے اصحاب فائز ہو گئے. صحیح ہے. تو آپ سماعت فرمائیے کہ اس 72 نے یہ کام کر دکھایا کہ آج انہی کا نام، انہی کی منزلت، انہی کے فضائل، انہی کے مسائل موجود ہیں. تو آپ کبھی نمبرز کو نہ دیکھیے گا، آپ ہمیشہ کیفیت کو دیکھیے گا، تعداد کو نہیں دیکھیے گا. وہ اسلام میں کہتا ہے کہ کمیت اثر نہیں کرتی، کیفیت اثر کرتی ہے. اگر ہاں مختصر سی جماعت ہوتی ہے، یاد رکھیے رسولوں کی جنہوں نے بھی تائید کی وہ مختصر تھے، حق کو ماننے والے مختصر تھے، قرآن پہ عمل کرنے والے مختصر تھے. وہ کبھی جو ہے وہ کبھی ایک کثیر تعداد نہیں رکھتے. تو آپ سوچئے کہ اس مقام کے اوپر موجود ہے کہ ہاں تعداد تو کم ہے ہماری لیکن کیفیت ہماری کربلا جیسی ہے. امام حسین چلے اپنے 72 کے ساتھ آج تک نام باقی رہا. صحیح. تو آئیے سنیے کہ امام حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سکینہ بنت الحسین. کربلا سمٹے تو حسین کی دعاؤں میں سمٹ جائے. سنتے ہیں نا آپ کہ دعائیں مانگی تھی پروردگار عالم سے کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عنایت کر دے کہ جب تو مجھے پکارے آواز دے، حق کے لیے آواز دے، تو میں اپنی دعاؤں کا حاصل، دعاؤں کا ثمرہ جو ہے تیری راہ میں قربان کروں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سکینہ. کس سے نکلا ہے؟ سکون سے نکلا ہے. یعنی ایسی ذات ہے جو حسین کے لیے بھی سکون بن کر آئی ہے. حسین کے لیے بھی سکون. ایک زینب تھی جو باپ کی زینت تھی، ایک فاطمہ تھی جو باپ کے لیے ٹھنڈک تھی. لیکن آئیے آپ یہ تو سماعت فرمائیے کہ اس منزلت پہ آ کر، اس مقام پہ آ کے کس طرح سمجھیں گے آپ سکینہ کو. اور آخری لمحہ ہے امام حسین اب جو کربلا میں خیمے سے برآمد ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ سب شہزادیوں سے اجازت لی، ساری شہزادیوں سے اجازت لی. ہاں اب جو امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے تو جانا چاہتے ہیں. کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ ذوالجناح نے حرکت کرنے سے، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میں کہوں مولا عجب التجائی الفاظ میں آپ نے ذکر کیا، اے ذوالجناح میرا وعدہ ہے یہ آخری سواری ہے، یہ آخری سواری ہے، جا رہی ہے، جا کر لوٹ کر نہیں آئے گی. میرا وعدہ ہے کہ تیری زحمتیں ختم ہو جائیں گی. یہ کہنا تھا، نہ جانے ذوالجناح نے کن الفاظوں میں کہا ہوگا اے حسین ابن علی
मैं चाहता तो हूँ कि तुझे ले जाऊं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी रुकावट में कोई और मौजूद है। न जाने किस तरह इशारा किया। हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा, देखने के बाद देखा सकीना जुलजना की टांगों से लिपटी हुई। इमाम हुसैन नीचे आए, आने के बाद अपनी बेटी को कलेजे से लगाया, कहा है सकीना मैंने तो तुझसे इजाजत ले ली थी, तूने तो इजाजत दे दी थी, फिर क्यों मेरा रास्ता रोक रही? कहा बाबा हाँ तुमने ये नहीं बताया कि तुम जा रहे हो लौट कर नहीं आओगे, लेकिन बाबा ये बता दो कि जब तुम नहीं होगे तो सकीना किसके सीने पे रोएगी? तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा ऐ सकीना आज के बाद हम बारी को बदल लेते हैं, असगर मेरे पास रहेगा और तू माँ के पास रहना। सकीना मेरा ख्याल आए तो माँ के सीने से लिपट के सो जाना। एक मर्तबा जब इमाम हुसैन अब जाना चाहते थे तो एक मर्तबा सकीना ने कहा बाबा अच्छा जा रहे हो तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते जाओ। बाबा एक मर्तबा मुझे सीने से लगा लो, बाबा मुझे सीने से लगा लो। अब जो हुसैन ने अपनी सकीना को अपने सीने से लगाया, एक मर्तबा न जाने कैसा सुकून हासिल हुआ। अब रिवायतें यही लिखती है सकीना को ऐसा सुकून नसीब हुआ कि आलम ख्वाब में चली गई। और एक मर्तबा जुजला के उठी बाबा मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ तुम अब मक्तल की तरफ चले जाओ। और एक मर्तबा हुसैन ने पूछा ऐ सकीना अभी रास्ता रोक रही थी, अभी रास्ता दे रही हो, समझ में नहीं आता कि पहले रोका क्यों था, अब इजाजत क्यों दे रही? एक मर्तबा सकीना ने अपने दामन को समेटा, अपने हाथों को जोड़ा, बाबा मैंने ख्वाब में देखा कोई मौजमा तशरीफ लाई है, वो कहती है मेरे बेटे को ना रो, देख हुसैन कितना मजलूम है, कितना प्यासा है, सुबह से शाम हो गई लाशें लाते लाते, सुबह से शाम हो गए लाशें लाते लाते, अब मेरे बेटे पे मसाइब खत्म हो रहे, मेरे बेटे को इजाजत दे दे। बाबा मैंने तुम्हें इजाजत दी, अब जो हुसैन चले अब ना लौट के आए। अरे सकीना वापस खेमे में आ गई। अरे रिवायत मकातिल लिखते हैं जब शब आई है, अरे जब शब आई तो एक मर्तबा फुप्पी ज़ैनब की आवाज आई सकीना आ जाओ अब पानी आ गया है, पानी आ गया। एक मर्तबा सकीना ने अपने नहीं आवाज से कहा ऐ फुप्पी अम्मा अगर पानी आ गया है तो क्या मेरे चचा अब्बास भी आ गए? कहा नहीं तुम्हारे चचा अब्बास तो नहीं आए लेकिन पानी आ गया। अब जो सकीना आई एक मर्तबा कूजे को लिया तो क्या कहती है ज़ैनब कि सकीना ख्याल रखना हमारा ये दस्तूर है कि जो सबसे छोटा होता है वो पानी पीता है, जो सबसे छोटा होता है वो पानी पीता है। अब जो सकीना ने कूजा लिया और मख्तल की तरफ निकल गई। अरे बीबी ज़ैनब आवाज दे रही सकीना कहाँ जा रही हो, सकीना कहाँ जा रही हो? एक मर्तबा कहा ऐ पुप्पी अम्मा अभी तो आपने कहा है जो सबसे छोटा होता है वो पानी पीता है, सबसे पहले मैं अपने असगर को पानी पिलाने जा रही, मैं अपने अली असगर को पानी पिलाने जा। अरे अली असगर कहाँ है? अरे अली असगर तो कब्र में सो रहा। अरे सकीना न जाने कहाँ चली गई। एक मर्तबा ख्याल आया हजरत ज़ैनब को मेरी सकीना कहाँ चली गई, मेरी सकीना कहाँ चली गई? अब जो आवाज दे के आ रही है एक मर्तबा अपनी बहन उम्मे कुलसूम को लिया, उम्मे कुलसूम के साथ अब जो मख्तल में आई, अब जो सकीना को तलाश किया, अब सकीना नहीं मिलती। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह दो मासूम बच्चों पे पड़ गई। अरे दो मासूम बच्चों को देखना, कहा के ऐ कुलसूम मैं देखती हूँ दो नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे, एक को तुम गोद में उठा लो, एक को मैं गोद में उठा लेती हूँ। अब जो दोनों को गोद में उठाया तो एक मर्तबा पुकारा ज़ैनब ये दो बच्चे नहीं ये दो जनाजे हैं। अरे ज़ैनब ने फरात की तरफ रुक करके आवाज दी अब्बास वफा निभा दी, देख तेरी बहनों को अब
तो जनाजे भी उठाने पड़ रहे। अरे एक मर्तबा फिर लौट कर आए और आने के बाद अब जो मख्तल में तलाश किया, सकीना नहीं मिलती। आवाज दी फरात की तरह, फरात अब्बास तुमने मेरी सकीना को देखा, तुमने मेरी सकीना को देखा। सकीना मख्तल में गुम हो गई, अंधेरे में अंधेरे में गुम हो गई। अब जो सकीना को तलाश करते पहुंचे तो देखा एक गोदाले में सकीना की आवाज आती, अरे सकीना ये क्या कर रही हो? कहा मेरा बाबा सो रहा है। भुप्पी अम्मा आराम आराम से आहिस्ता आवाज से बोलिए, अरे सकीना तुमने कैसे पहचाना? ये तुम्हारे बाबा का जनाजा है। जनाजा पहचाना जाता है या लिबास से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। सकीना तेरे बाबा का लिबास भी मौजूद नहीं है, तेरे बाबा का सर भी मौजूद नहीं। अजब जुमला कहा सकीना ने, ऐ पप्पी अम्मा मैं बाबा को तलाश करती थी, मैं बाबा को तलाश करती थी। हर एक मर्तबा इस गोदान से आवाज आ रही, बुनैया बुनैया ए नैया, ऐ मेरी बेटी आजा, मैं कहूंगा सब कुछ है रिवायत। मेरा दिल कहता है सकीना अपने बाबा को तलाश करती थी, बाबा के जिस्म पे जख्म थे। अरे सकीना मरहम बन गई, सकीना सुकून बन के अपने बाबा के जिस्म से लिपट गई। अरे शहजादी ने सकीना को लिया, वापस खेमे में तशरीफ लाई। अब हमें रावी बयान करते, अब ये काफिला चला। अरे चलने के बाद जब पहुंचा, अरे जिंदान में असीर हुआ। असीरी में अजब सवाल कर रही जनाब सकीना, पुप्पी अम्मा मैं रोजाना इस जिंदान से देखती हूँ कुछ परिंदे आते हैं, कुछ परिंदे वापस जाते, सुबह आ रहे होते, शाम को वापस जा रहे होते। पुप्पी अम्मा ये तो बताइए सुबह कहाँ से आते हैं, शाम कहाँ लौट के जाते हैं? अब पुप्पी ज़ैनब क्या बताए, अरे ये अली की बेटी ज़ैनब क्या बताए कि आते कहाँ से जाते कहाँ से? एक मर्तबा ये अली मदद कहा और कहा सकीना सुनो ये आते घर से है और वापस अपने काशानों की तरफ लौट जाते हैं। अब जो जुमला सुना सकीना ने, कहा पुप्पी अम्मा हम भी तो अपने घर से आए थे, हमें भी तो वापस वतन जाना है। अब सकीना को ज़ैनब क्या जवाब दे? सकीना लौट कर तो वो जाते हैं जो आजाद होते हैं, तू तो उम्र की कैद है, तू तो असीरी उम्र रखती है, तू तो हमेशा यहाँ रहेगी। अरे बस वो सकीना हमेशा के लिए जिंदान में रह गए उस नन्ही सी कब्र पे। अरे उस नन्ही सी कब्र पे बस एक जुमला समाअत फरमाइए, जुमला समाअत फरमाइए। जब आखिरी वक्त आया, अरे उसरा के जब सर वापस आए, जब तबरुकात वापस आए, जब तबरुकात वापस आए, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने उस तश के अंदर से एक छोटा सा कुर्ता उठाया, छोटा सा कुर्ता उठाया। अब लेकर कहाँ जाएंगे, अब लेकर कहाँ जाए? ज़ैनब ने देखा सैयद सज्जाद कहाँ जाते हो इस छोटे से कुर्ते को लेके? एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ मेरी पुप्पी अम्मा ये मेरे तबरुकात मेरी बहन सकीना के है। एक मर्तबा करीब पहुंचे, कब्र मुबारक के ऊपर कुर्ता रखा और कहा सकीना हम सब आजाद हो गए, हम सब वापस लौट कर जा रहे, हम करबला भी जाएंगे, हम मदीना भी जाएंगे, लेकिन सकीना तेरा जिक्र करते जाएंगे, उम्र भर तेरा मातम करेंगे। सकीना दुनिया को बताएंगे आजादी हमको मिली, सकीना को न मिली, हमेशा कैद में रहने वाली, हमेशा असीरी में रहने वाली सकीना। हमारी इस खलील सी इबादत को कबूल फरमा, हमें सच्चे अहले बैत के चाहने वालों में शामिल फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, रिज़्क़ हलाल में इजाफा फरमा, मोमिन और मोमिनात के ईमान में इजाफा फरमा। परवरदिगार इस मकान के ऊपर, इस मकान में रहने वाले मकीनों के ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार हमारी आखिरी दुआ यही है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल